नमस्कार व्यूअर्स, अनअकैडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आया हूं। अगेन इंडियन एक्सप्रेस में या हिंदू में इकोनॉमी रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आता है और आपको इस ग्रुप पे ना मिले, वो शायद नहीं होगा। मे बी द न्यूज़ माइट नॉट कम टुमारो, बट वो न्यूज़ जब भी उसकी इंपॉर्टेंस होगी, जब मैं उसके ऊपर रिसर्च कर लिया होऊंगा, तब ऑब्वियसली इस चैनल पे आपको वीडियो आएगा ही। इसलिए आई ऑलवेज रिपीटेड दैट इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट preparing for any exam, then Unacademy IS Manzil is going to be your one-stop solution for every economy-related current affairs, be it important for prelims, be it important for mains. इसीलिए friends, and I really want to thank you for showing such a great support by watching the video. And also, just as a matter of appreciation, you can also like my video, because as a teacher, what just matters is that are my students able to understand it or not. Because apart from money, once you earn money, then the attractiveness towards money fades, and the attractiveness towards appreciation, the attractiveness towards getting happy about the work which you have done, that becomes very important, especially for a teacher, right? Because teaching is not like a business. Over here, it's not only about money. It's about the love, it's about the respect, it's about the communication which the teacher and the student has. So again, I really want to thank you, and I always wanted to thank you, but ठीक है, आज वो मौका अचानक आ गया, even though I did not plan to say thank you in this video. I'm not saying I did not wanted to say thank you. I just did not wanted, I did not plan to say thank you in this video, but okay, let's not get distracted and let's straight away hit the topic of friends. देखिए, अभी कुछ समय से लगातार इंडिया के आईटी इंडस्ट्री के ऊपर, जो इंडिया की आईटी इंडस्ट्री है विच इज जनरली वर्ल्ड फेमस, इंडिया के जो आईटी कंपनीज है, दे हैव क्रिएटेड a very unique identity of India. India is sometimes called as a service capital of the world. इंडिया की इकोनॉमी में 55% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से आता है. दैट इज समथिंग विच इज वेरी स्ट्रेंज, बिकॉज चाइना विच इज अ $20 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 times बिगर देन इंडिया, उनकी इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इज अराउंड 55%. सो इंडिया इज अ वेरी डिफरेंट इकोनॉमी, बिकॉज इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर उतने अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पाया. But thankfully, one sector which eventually worked out was services sector, and especially over there, IT industry. And IT industry, you know that since 1990s, it has been world famous. We have been providing services to global clients, because of which India is able to generate a huge amount of forex. Because IT में services sector में we are the net exporter, and this extra dollar which we earn from this service sector, somehow we are able to compensate for the massive deficit which we have in the merchandise, in the goods trade, क्योंकि वहां पे we are the net importer and we are a very big net importer. So IT industry, services sector का एक बहुत important asset है हमारे लिए. और that has led to Bangalore like city, Hyderabad like city, ये सब Pune like city, ये सब has been a result of that IT boom which has happened in India. But since past couple of years, with the coming of AI, there has been a very very serious question mark on India's IT industry. Because लोग कहते थे कि इंडिया की आईटी इंडस्ट्री इज नॉट डूइंग एनीथिंग इनोवेटिव, इट इज जस्ट एक्टिंग लाइक द साइबर कूलीज ऑफ द वर्ल्ड. वी आर द साइबर कूलीज, वी आर द second hand, we do the second hand work. We are only our IT industry was only able to progress because we had cheap labor, and thankfully those cheap labor were able to speak English, unlike Chinese, and that's why we were able to integrate with the US Silicon Valley and the वेस्टर्न इकोनॉमीज. तो इंडिया की आईटी इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ा इनोवेशन नहीं हुआ है. इंडिया के आईटी इंडस्ट्री में केवल चीप सर्विसेज प्रोवाइड किए गए हैं अपने अमीर वेस्टर्न क्लाइंट्स के लिए, रिच वेस्टर्न क्लाइंट्स के लिए, बीट माइक्रोसॉफ्ट, बीट गूगल और बीट अमेजॉन, राइट. और ये कहीं ना कहीं सही भी है, बट कहीं ना कहीं ऑब्वियसली गलत भी है इंडिया की आईटी इंडस्ट्री. क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि इंडिया जो 200 साल की कोलोनियलिज्म के बाद निकल कर आके वी कैन क्रिएट आवर ओन माइक्रोसॉफ्ट, so that is something which is very foolish to accept, because India is a very different country. Our past has been very different, our problem is very different, and again it's very foolish to compare India with China, because China is a
unitary country. India is a federal country. China is one nation, one law, one religion, one nation. सब कुछ one है वहाँ पे. But India is a country of diversity, and more importantly, India is a country of democracy where things go slow. So yes, India की IT industry has not created its own Facebook. India की IT industry have not created its Amazon. But that does not mean we cannot do that, right? But obviously, considering the stage at which India is, our IT industry has done a very incredible job. लेकिन अब आईटी इंडस्ट्री ऑब्वियसली इनको ठीक करना पड़ेगा, अपने आप को इनको रिफॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ द वर्ल्ड इज बिकमिंग वेरी कॉम्पिटिटिव बिकॉज ऑफ एआई. And hence, if our IT industry needs to survive, then they have to compete, they have to grow, they have to innovate. इसीलिए पिछले कुछ समय से IT इंडस्ट्री के ऊपर एक बहुत डार्क क्लाउड छाया हुआ था. पीपल वर वेरी पेसिमिस्टिक अबाउट IT इंडस्ट्री. उनको लग रहा था कि जो काम इंडिया के IT इंजीनियर्स करते हैं वो आज खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर पाएगा. एंड दैट्स वाई ये जो इंडिया की IT इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं दे आर गोइंग टूवर्ड्स इट्स एंड. उनकी क्राइसिस स्टार्ट हो चुकी है. और इसीलिए आप देखेंगे इंडिया की जितनी भी कंपनी है, TCS, इन्फोसिस, इन सब के शेयर मार्केट जो हैं वो अपने लोएस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं. लेकिन मैं हमेशा से बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहा हूं इंडिया के आईटी इंडस्ट्री के ऊपर. और इंडिया के आईटी इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली फॉलो भी किया हूं. मुझे याद है राजीव गांधी जी, हु इज नोन एज द फादर ऑफ आईटी रिवॉल्यूशन इन इंडिया, उन्होंने कैसे पूरे आईटी इंडस्ट्री का रूपरेखा बदला. और उसके बाद से लेकर आज तक आईटी इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा जर्नी सफर किया है. और आज भी जिस तरीके से एआई आज सारे रूल्स ऑफ गेम को चेंज कर रहा है, आई स्टिल थिंक एंड आई स्टिल बिलीव वेरी फॉर्मली दैट इंडिया की आईटी इंडस्ट्री इज गोइंग टू डू समथिंग बिग. और इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि इंडिया की आईटी कंपनीज के लिए भी एआई मोमेंट आएगा. इंडिया की कंपनी के लिए भी, आईटी कंपनीज के लिए भी एआई मोमेंट आएगा. और ये मोमेंट मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मोमेंट आया था Y2K मोमेंट. Y2K मोमेंट शायद आपने कभी पढ़ा होगा. मैंने अपने स्टूडेंट्स को बैच में हमेशा से पढ़ाता हूं Y2K मोमेंट. अब ये Y2K मोमेंट क्या है, इसको अगर मैं फुल फॉर्म लिखूं तो ये ईयर 2000 मोमेंट था. ईयर 2000 मोमेंट. ईयर 2000 मोमेंट में देखिए हुआ क्या था फ्रेंड्स, कि जितने भी, क्योंकि 1990s में आपको पता है इंटरनेट आ चुका था, कंप्यूटर्स आ चुके थे, सॉफ्टवेयर आ चुका था. तो 1990s के बाद जब .com रिवॉल्यूशन आया और बहुत सारे डिजिटल कंपनीज आ गए, सॉफ्टवेयर कंपनीज आने स्टार्ट हो गए थे, उस समय प्रॉब्लम क्या हुआ कि जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, वो लोग ईयर ईयर मतलब साल, लेट्स से 1998, तो ये लोग के जो सॉफ्टवेयर्स थे उनको इस तरीके से ट्रेन किया गया था दैट दे वर एबल टू रिमेंबर दिस ईयर, स्टोर दिस ईयर नॉट इन 4 डिजिट्स बट दे वर डूइंग इट इन 2 डिजिट्स. तो 1998 को ये लोग अपने सॉफ्टवेयर में स्टोर करते थे इन द फॉर्म ऑफ 98. फिर ये 98 99 चल रहा था, ऐसे ही चल रहा था 81 82 85 87 91 92 98 99. बट अब क्या प्रॉब्लम हुआ कि 99 के बाद क्या होगा, बिकॉज दिस 9 इज eventually गोइंग टू कन्वर्ट इनटू 0 एंड दिस 9 इज eventually गोइंग टू कन्वर्ट इनटू 0. बट सॉफ्टवेयर जो है वो तो केवल 2 डिजिट को ही रिकॉल करता है. तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से नाउ आफ्टर 1999 एज पर द सॉफ्टवेयर द नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी 1900. It will not be 2000 because the software were not trained for that. Software were only trained to store the last 2 digits. So this problem came across the world. And let's say आपकी फ्लाइट की टिकट है 2000 की, आप एयरपोर्ट पे गए, आपने स्कैन किया, बट सॉफ्टवेयर तो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, बिकॉज फॉर सॉफ्टवेयर 2000 is 1900. So that could have led to huge chaos in the banks, flight connectivity, everywhere, government. तो ये एक मिलेनियम बग कहा गया, ये एक सेंचुरी प्रॉब्लम बन गया, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ऑल द प्रॉब्लम. अब इस मिलेनियम बग को सॉल्व करना था, तो ये जितने भी ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, दे स्टार्टेड टू लुक टूवर्ड्स कि कौन कंपनी है जो इसको एक मैसिव स्केल पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम में इस मिलेनियम बग को सॉल्व करे बाय अपडेटिंग द सॉफ्टवेयर को अपडेट करके इस बग को सॉल्व किया जाए. एंड दिस वाज अ मोमेंट व्हिच वाज गॉड सेंट, because Indian IT companies were already strong, they were waiting. और होता है ना कि जब आपने मेहनत किया है तो एक ऐसा दिन आएगा जब आपका किस्मत बदलेगा. और वही इंडिया की आईटी इंडस्ट्री के लिए हुआ. TCS कंपनी थी उस समय, सत्यम कंपनी थी उस समय, और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को सीख किया. एंड दिस मिलेनियम बग इंडिया के आईटी कंपनीज ने सॉल्व किया. एंड इन फैक्ट दिस वाज अ मोमेंट व्हेन इंडियन आईटी कंपनीज शोड दिस टू द वर्ल्ड व्हाट आवर आईटी engineers, what our IT companies can do. और उसके बाद से मैसिव अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के आईटी कंपनीज को मिलना स्टार्ट हुआ, एंड दैट लेड टू द रियल रिवॉल्यूशन ऑफ आईटी इन इंडिया सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंचुरी. तो
1990s में भी जब डॉट कॉम रिवॉल्यूशन आ रहा था, इंटरनेट रिवॉल्यूशन आ रहा था, तो पीपल वर क्वेश्चनिंग कि अब इंडिया का क्या होगा। बट अगेन द मोमेंट केम एंड इंडिया के लिए सब कुछ बदल गया। सेम इज फॉर एआई, कि आज इंडिया के ऊपर, इंडिया की आईटी कंपनीज के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। क्यों? बिकॉज आज एआई के डेवलपमेंट की बात हो रही है कि कौन चैट जीपीटी बना सकता है। बट व्हेन इट विल कम टू एआई डिप्लॉयमेंट, जब एआई को यूज केस की बात आएगी, तब इंडिया की आईटी इंडस्ट्री के लिए वापस से एक नया सक्सेस आएगा। तो ठीक है, हमारे आईटी इंडस्ट्रीज डेवलपिंग एआई, बट एआई का डिप्लॉयमेंट के समय देन देयर विल बी अ Y2K वाला मोमेंट फॉर इंडिया की आईटी इंडस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू एआई। सो दैट्स व्हाई एट दिस स्टेज यस वी आर हैविंग प्रॉब्लम, बट जब एआई डिप्लॉयमेंट की बात आएगी, जो इवेंचुअली आएगी, बिकॉज आप 1990 से लेकर 2000 तक सॉफ्टवेयर बने, इंटरनेट आया, डॉट कॉम कंपनीज बनी, बट 2000 के बाद इन सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने की बात हुई, राइट। गूगल क्लाउड बना, बट गूगल क्लाउड का सर्विस उसको डिप्लॉय करने की बात हुई, तो वो टीसीएस प्रोवाइड करने लगी, राइट। So development is different and deployment is different. So that's why when AI will reach to that stage where AI की deployment आएगी, businesses में इसको integrate करने की बात आएगी, educational institution में इसको integrate करने की बात आएगी, that will create again a huge opportunity for India की IT industry and hence एक Y2K moment आएगा। और मेरे हिसाब से वो Y2K moment as per the Indian Express also इनका कहना है कि शायद कहीं ना कहीं अब आते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और जर्मन कार मैन्युफैक्चरर पोर्शे का डील हुआ है, इस डील की वजह से इंडिया में जो एआई के प्रति एक नेगेटिव सेंटिमेंट था, दैट इज गोइंग टू रिवर्स इंडियाज एआई ट्रेड स्क्रिप्ट। मतलब इट इज गोइंग टू अगेन नाउ ब्रिंग इंडियाज आईटी कंपनी फोर फ्रंट विथ रिस्पेक्ट टू एआई डिप्लॉयमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा खबर क्या है कि इंडिया की जो सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस, इसने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है विद जर्मन कार मैन्युफैक्चरर पोर्शे एजी, जिसके अंदर पोर्शे एजी को एआई रिलेटेड कंसल्टिंग, कि कैसे पोर्शे अपने कार मैन्युफैक्चरिंग के इस पूरे सप्लाई चेन में एआई को इंटीग्रेट करके अपने प्रोडक्शन यूनिट को और ऑप्टिमाइज, बेटर, एफिशिएंट बना सके। ये चीज अब पोर्शे के लिए टीसीएस जो है वो इनको कंसल्टिंग देगी। सो यू कैन सी नाउ द रियल गेम इज बेसिकली स्टार्टिंग। अब इस पूरे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हुआ क्या है, तो इसको समझने के लिए हमें दो ट्रांजैक्शंस को समझना पड़ेगा। एक कंपनी है एमएचपी, एमएचपी मैनेजमेंट ये कंपनी का नाम है। ये कंपनी एक सब्सिडियरी है पोर्शे की। तो पोर्शे एक बड़ी कंपनी है, इसका मेन काम क्या है? कार को मैन्युफैक्चर करना, बट इट ऑल्सो हैज अ सब्सिडियरी कंपनी, एक सब्सिडियरी कंपनी है जिसका नाम है एमएचपी मैनेजमेंट। अब ये एमएचपी मैनेजमेंट क्या करती है? ये कार मैन्युफैक्चर नहीं करती है, इसका काम है टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग देना। ये कंसल्टिंग का काम करती है, ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड एडवाइस देती है। और किस टेक्नोलॉजी के बारे में? तो इसका जो सबसे कोर एक्सपर्टीज है वो ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के बारे में, मतलब कार मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में, कि कैसे एआई को इंटीग्रेट करके आप अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हो, एआई के डेटा को एनालाइज करके आप अपने कार का जो सर्विस लाइफ है उसको एक्सटेंड कर सकते हो। सो ऑल दैट। सो बेसिकली एमएचपी मैनेजमेंट इज अ technology consulting company which basically gives technology related advice to automotive companies, जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या उससे रिलेटेड हैं, उनको ये कंसल्टिंग एडवाइस देती है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि जो पोर्शे है, जिनकी ये सब्सिडी है एमएचपी मैनेजमेंट, इसको टीसीएस इंडिया की जो आईटी कंपनी है वो खरीद रही है एट अ कॉस्ट ऑफ अराउंड 3,574 करोड़। तो टीसीएस जो है वो इस पोर्शे की सब्सिडी टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग कंपनी के 100% स्टेक को खरीद रही है एट 3,574 करोड़, विच इज अ स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन बाय इंडियाज आईटी कंपनी टीसीएस। अब इसके बाद क्या होगा? तो वंस टीसीएस परचेजेस, जैसे टीसीएस इस एमएचपी मैनेजमेंट को खरीद लेगी, पोर्शे को पैसे दे देगी 3,574 करोड़, देन इन ऑर्डर टू सपोर्ट दिस एक्विजिशन, इस एक्विजिशन को सपोर्ट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, व्हाट पोर्शे इज गोइंग टू डू, पोर्शे इज गोइंग टू एंटर इनटू अ 5-year स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट, 5 साल के स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट में एंटर कर जाएगी विथ टीसीएस एंड एमएचपी, जिसके अंदर ये दोनों मिलके अब पोर्शे को 5 साल तक लगातार टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंसल्टिंग एडवाइस देंगे, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये दो लेग ऑफ ट्रांजैक्शन है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में टीसीएस इज गोइंग टू बाय पोर्शेस आईटी कंसल्टिंग सब्सिडी एमएचपी मैनेजमेंट
Post that, Porsche is going to enter into TCS and MHP, who are now going to collectively, solve the problem for Porsche, who are collectively going to give AI related advice to Porsche. अब इसमें होगा क्या फ्रेंड्स, देखिए कि मैं इसको यहां पे बताता हूं कि TCS के पास क्या है। आज TCS के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी तेज रेट से काम कर रही है, आईटी पूल का इंजीनियर्स है। TCS जो है वो इंजीनियरिंग में भी एक्सपर्टीज है, टाटा मोटर्स है उनकी अपनी कंपनी, और TCS जो है उसका ग्लोबल स्केल पे काम करती है। MHP के पास क्या है कि MHP के पास एक नीश एक्सपर्टीज है। वो नीश एक्सपर्टीज क्या है कि MHP जो है वो ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत बड़ी जानकार है, उसके पास ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से है। MHP एक जर्मन या यूरोपियन कंट्रीज में इसका प्रेजेंस काफी अच्छा है, जिससे TCS को यूरोपियन क्लाइंट्स मिलेंगे। अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो इट इज गोइंग टू बिकम वर्ल्ड्स बिगेस्ट एआई पावर्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। मतलब ऑटो इंडस्ट्री से किसी भी तरीके का एआई रिलेटेड किसी भी कंपनी को, वो चाहे कल को BMW हो जाए, वो चाहे कल को मर्सिडीज हो जाए, वो पोर्शे हो जाए, या एनी अदर कंपनी और महिंद्रा कोई भी कंपनी हो जाए, उन सभी को ये TCS प्लस MHP का जो कंबाइंड जायंट कंपनी है, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड दिस एआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। तो इससे फ्रेंड्स पोर्शे को काफी मदद मिलेगी, वो चाहे उनको अपने डिजाइन में, राइट, मैन्युफैक्चरिंग में, सप्लाई चेन में, ऑपरेशंस में, व्हीकल सॉफ्टवेयर में, कस्टमर एक्सपीरियंस, मतलब इस पूरे पोर्शे की जो मोबिलिटी वैल्यू चेन है, जो कार मैन्युफैक्चरिंग की वैल्यू चेन है, उन सभी स्टेज में एआई को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, इसके लिए अब कलेक्टिवली TCS और जो MHP मैनेजमेंट है ये लोग प्रोवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में एआई असिस्टेड व्हीकल डिजाइन एंड सिमुलेशंस, मैन्युफैक्चरिंग में इंटेलिजेंट फैक्ट्रीज कैसे बनाया जाए, सप्लाई चेन डिमांड फोरकास्ट कैसे किया जाए सो दैट क्राइसिस ना हो, शॉर्टेज ना हो रॉ मटेरियल्स की, व्हीकल्स को कैसे सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट किया जाए सो दैट ये पता चल सके व्हीकल को कब सर्विसिंग करवाना है, व्हीकल में क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर एक्सपीरियंस, पर्सनलाइज्ड एआई रिलेटेड सर्विसेज। तो ये हर एक स्टेज पर TCS और MHP जो है वो पोर्शे कंपनी को कंसल्ट करेगी, और साथ ही साथ और भी कार मैन्युफैक्चरर्स को कंसल्ट करेगी। इनफैक्ट TCS जो है उसने कहा है इस एग्रीमेंट के अंदर इट इज गोइंग टू सेट अप अ एआई मोबिलिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पेशली फॉर पोर्शे। तो मतलब बेसिकली फ्रेंड्स TCS जो एक जनरल आईटी की बड़ी कंपनी है, पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द बिग कंपनी है, वो MHP के एक स्पेशल एक्सपर्टीज को जोड़ के सो दैट MHP को, क्योंकि देखिए पोर्शे के पास MHP था, बट पोर्शे को पता है कि मेरा काम क्या है, कार मैन्युफैक्चरिंग का। I don't have my core expertise of running a technology consulting company. So in order to ensure best utilization of MHP assets, in order to ensure best utilization of MHP employee, because 4500 एम्प्लॉय हैं और 300 से अधिक क्लाइंट्स हैं, तो MHP को, पोर्शे को समझ में आ गया कि वो अगर इसके ओनरशिप को रखते हैं तो वो MHP के साथ जस्टिस नहीं कर सकते हैं, वो MHP को बेटर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन एक्सपर्टीज। सो दैट्स व्हाई पोर्शे ने MHP को और बड़ा बनाने के लिए, उसके सर्विसेज को और कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए एक वेल एस्टैब्लिश्ड इंडियन आईटी कंपनीज जो ऑलरेडी इस चीज को प्रूव कर चुकी है उसको इन्होंने हैंड ओवर कर दिया है। सो दैट नाउ क्लियरली शोज कि इंडिया की आईटी कंपनी जो पहले सेकेंड हैंड काम के लिए जानी जाती थी, जो पहले केवल कोड को अपडेट करने के लिए जाना जाती थी, नाउ दे आर गोइंग टू प्रोवाइड AI related solutions. Now they're going to provide you this problem solving approach. Now they're going to create AI solutions. They're not going to do copy paste. Now they're going to design, implement and operate AI solutions. तो जो ओल्ड मॉडल था जिसमें आउटसोर्सिंग के लिए इंडिया जाना जाता था, नाउ इंडिया इज गोइंग टू बी नोन फॉर एआई रिलेटेड कंसल्टिंग, जहां पे एआई बेस्ड रिसर्च होगा, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व बेसिक प्रॉब्लम्स विच पीपल आर गोइंग टू फेस। और ये जो कंपनी का डील हुआ है TCS का पोर्शे के साथ, दैट इज रियली गोइंग टू बी अ शॉट इन द आर्म फॉर द इंडियन आईटी। बट इसके अलावा अगर आप देखेंगे दिस ईयर और सिंस लास्ट ईयर मेनी बिग टिकट डील्स हैव हैपेंड। TCS पोर्शे का तो मैंने बताया 1.25 बिलियन यूरो का, इन्फोसिस NHS बिजनेस सर्विस का 1.2 बिलियन यूरो का, विप्रो ओलाम ग्रुप का $1 बिलियन का, HCL टेक का अनमैन्ड यूरोपियन कंपनी के साथ $1.14 बिलियन का हुआ है। So friends, things are changing. Yes, it is going to take time, but एक Y2K moment आएगा that will again be godsend and India की कंपनीज उसको एक्सट्रैक्ट करेगी।
सो लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज ऑप्टिमिज्म के बेसिस पे ही वर्ल्ड सर्वाइव कर सकता है एंड इंडिया की विकसित भारत की एस्पिरेशंस हो सकती है। राइट, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।